Good evening, one and all watching here. My name is Dr. Vaibhav Agrawal, and today we are going to discuss about the very important topic of macroeconomics, that is critical minimum effort theory. The theory was coined by Ukrainian-born American Jewish economist Harvey Levenstein in his famous book Economic Backwardness and Economic Growth, published in 1957. हम लोग आज बात करने जा रहे हैं क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत की, जिसका प्रतिपादन हार्वे लेवेंस्टीन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में किया था, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी. इन हिज थियरी हार्वे लेवेंस्टीन talked about, Harvey Levenstein manifested about the underdeveloped economies, and he said every underdeveloped economies are trapped into the net of low level income trap, low level income equilibrium trap, in the morass of poverty, in the morass of underdevelopment. यानी हार्वे लेवेंस्टीन अपनी थियरी में कहते हैं कि जितनी भी विश्व में अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, आपको मालूम है there are two types of economies, underdeveloped economies and developed economies. The theory is associated with the problem of underdeveloped economies. यानी ये जो सिद्धांत है ये underdeveloped economies की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से संबंधित है. He said every underdeveloped economies are trapped into the net of low level income trap, low level income equilibrium trap. यानी अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं निम्न आय के जाल में फंसी हुई हैं, उलझी हुई हैं, बेरोजगारी के दलदल में धसी हुई हैं और उनका विकास नहीं हो पा रहा है. अकॉर्डिंग टू हार्वे लेवेंस्टीन, ही सेड इफ underdeveloped economies wants to take it out their economy from the morass of low level income trap, from the morass of poverty, from the morass of unemployment, then each and every underdeveloped economy will have to invest up to the extent which is critically minimum level of investment, which should be critical minimum level of investment. यानी उनका कहना था कि अगर इन अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं को निम्न आय के जाल से बाहर निकलना है, उनको लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से बाहर निकलना है, तो उनको कम से कम उतना न्यूनतम प्रयास निवेश के रूप में करना पड़ेगा जिसके बिना उन अर्थव्यवस्थाओं को इन अल्प विकास के चंगुल से, निम्न आय के संतुलन जाल से निकालना असंभव होगा. मीन्स ही सेड इफ underdeveloped economies want to take it out their economy from the morass of low level income trap, from the morass of poverty, from the morass of underdevelopment, from the morass of unemployment, then the economy will have to invest up to the extent which is critical minimum, which is critically required to take it out their economies from the morass of all these problems. In his theory, he said the population is the function of income. चलिए देखते हैं. अपनी थियरी में उनका कहना था कि जनसंख्या आय का फलन होती है. जनसंख्या आय का फलन होती है मीन्स पॉपुलेशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम. इसका मतलब है कि अगर इकोनॉमी में आय का स्तर बढ़ता है तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में जनसंख्या भी बढ़ती है. मीन्स पॉपुलेशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम. अकॉर्डिंग टू हार्वे लेवेंस्टीन, in initial stage population is a increasing function of income, and with the passage of time population becomes the decreasing function of income. यानी शुरुआत में जब विकास की आरंभिक अवस्था है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने प्रयास शुरू किए हैं अपने अल्प विकास के कुचक्र को तोड़ने का, then the population shows the increasing function of income, and with the passage of time it shows the decreasing function of income. On the basis of relationship between income and the population, Harvey Levenstein manifested about the three stages: first stage, second stage and third stage. We will discuss one by one. Let's see. कहने का मतलब है उन्होंने इनकम और जनसंख्या के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस की बात की है. हम लोग उन तीनों स्टेजेस को समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट स्टेज, लेट्स सी द फर्स्ट स्टेज.
In first stage, according to Harvey Levenstein, in the first stage, economy witnesses a very low level of income, a very low level of per capita income. हार्वे लेवेंस्टीन का कहना था कि पहली अवस्था में अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत कम होता है. Means in the first stage, economy witnesses the very low level of per capita income, very low per capita income. Also, in the first stage, economy witnesses a very high birth rate as well as very high death rate. इस स्टेज में इकोनॉमी में जन्म दर और मृत्यु दर बहुत उच्च होते हैं एंड बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर. यानी एक तरफ मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है, बहुत उच्च स्तर पे है, और दूसरी तरफ बर्थ रेट भी बहुत हाई लेवल पे होते हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं. एज वी ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट shows the population growth rate. If in the first stage birth rate and death rate will be exactly equal to each other, then we can say the population growth rate will be zero in the first stage. इसका मतलब है कि डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत हाई है, लेकिन दोनों जब एक दूसरे के बराबर हैं तो जनसंख्या की वृद्धि दर जीरो होगी. Population growth rate will be zero in the first stage. Means in the first stage per capita income is very low, birth rate is very high, death rate is very high, and both are exactly equal to each other, and population growth rate will be zero in the first stage. What about the second stage? Let's see. Second stage, अब दूसरी अवस्था में just because of the effort made by the underdeveloped economies to enhance the income level, दूसरी अवस्था में अब अर्थव्यवस्थाएं कोशिश करेंगी प्रति व्यक्ति आय के स्तर को बढ़ाने की. Now the per capita income, the level of per capita income has increased. Then after increasing the per capita income in the second stage, now the people can avail the better medical facilities, better hospital, बेटर डॉक्टर, बेटर मेडिसिन, बेटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. यानी अब लोगों की इनकम इकोनॉमी में पहले की तुलना में बढ़ गई है जस्ट बिकॉज ऑफ द एफर्ट मेड बाय द इकोनॉमीज, मेड बाय द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, एफर्ट मेड बाय द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज. अब लोगों की इनकम चूंकि बढ़ गई है तो इसकी वजह से वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी, अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल. तो इसका सीधा परिणाम ये होगा कि नाउ इन द सेकेंड स्टेज डेथ रेट विल बी डिक्रीज्ड. डेथ रेट आपका पहले स्टेज की तुलना में अब नीचे जाएगा. बट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कीप इन माइंड, बर्थ रेट इज स्टिल वेरी हाई इन द सेकेंड स्टेज. यानी बर्थ रेट अभी भी आपका बहुत उच्च स्तर पर बना रहेगा. यानी अब मृत्यु दर में कमी आ रही है पहली स्टेज की तुलना में, लेकिन बर्थ रेट अभी भी बहुत उच्च स्तर पर बना हुआ है. अगेन you know very well the difference between the death rate and birth rate show the population growth rate. यानी अब इनकम बढ़ी, डेथ रेट नीचे गई, यानी मरने वालों का दर पहले की तुलना में कम हुआ. मीन्स द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल बी पॉजिटिव एंड विल बी वेरी हाई. यानी अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका बहुत ज्यादा होगा क्योंकि मरने वालों का रेट, मृत्यु दर कम हो गई है, और जबकि बर्थ रेट अभी भी बहुत ज्यादा है. एंड द डिफरेंस बिटवीन द डेथ रेट एंड बर्थ रेट शो द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. इसका मतलब है कि अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होगी. इसीलिए हार्वे लेवेंस्टीन कहते हैं इन इनिशियल स्टेज पॉपुलेशन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम. यानी शुरुआत में जब इनकम बढ़ती है, जैसा कि आपने देखा, just because of the effort made by the underdeveloped economies to increase the income level in the economy, income will go up, इनकम ऊपर जाएगी, इनकम बढ़ेगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो जाएगी. मींस अकॉर्डिंग टू हार्वे लेवेंस्टीन इन इनिशियल स्टेज पॉपुलेशन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम. पहली शुरुआत में अब जब इनकम बढ़ रही है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा है. दैट्स व्हाई हार्वे लेवेंस्टीन सेड इन इनिशियल स्टेज पॉपुलेशन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम.
यानी डेथ रेट आपका कम होगा, बर्थ रेट अभी भी हाई है, और इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो आपका पहली स्टेज में 0 था, अब पॉजिटिव ग्रोथ रेट हो जाएगा पॉपुलेशन का और बहुत हाई होगा। दैट्स व्हाई जनसंख्या आय का बढ़ता हुआ फलन है अकॉर्डिंग टू हार्वे-लेविन्स्टीन इन इनिशियल स्टेज। व्हाट अबाउट द थर्ड स्टेज? अब थर्ड स्टेज में क्या होगा? नाउ द मोर इंटेंसिव एफर्ट, मोर इंटेंसिव अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज द इनकम लेवल इन द इकोनॉमी इन द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। अब और ज्यादा कोशिशें होंगी कि इनकम लेवल को बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इनकम लेवल और भी ज्यादा बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा, जिसकी वजह से अब लोगों के अंदर नाउ द अवेयरनेस लेवल विल बी इंक्रीज्ड, नाउ द एजुकेशन लेवल विल बी इंक्रीज्ड, नाउ द न्यू स्लोगन हैज कम into the minds of the people like small family is a happy family, nuclear family is a happy family, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो जैसे स्लोगन्स पे उनका विश्वास बढ़ेगा। तो इसकी वजह से नाउ द बर्थ रेट विल बी डिक्रीज्ड एज वेल इन द थर्ड स्टेज। अब बर्थ रेट में भी कमी आएगी, तीसरी स्टेज में बर्थ रेट नीचे जाएगा। लेकिन आपको यह बात याद रखनी है, यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग कि डेथ रेट में अब कमी नहीं आएगी, क्योंकि डेथ रेट में जितनी भी कमी आनी थी वो सेकेंड स्टेज में ही आ चुकी है। मींस डेथ रेट विल नॉट बी डिक्रीज्ड इन द थर्ड स्टेज, ओनली वी विल विटनेस द डिक्रीज इन द बर्थ रेट। जिसकी वजह से क्या होगा, अब जब बर्थ रेट आपका नीचे जाएगा और डेथ रेट आपका जितना नीचे जाना था वो जा चुका, इसका मतलब है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेकेंड स्टेज के कंपैरिजन में अब थोड़ा सा कम होगा। यानी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेकेंड स्टेज में 15% पे था, नाउ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज वी कैन से 6%। मींस पॉपुलेशन की बढ़ने की दर पहले बहुत तेज थी, अब तीसरी स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका पहले के कंपैरिजन में कम होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन बर्थ रेट। यानी अब बर्थ रेट में कमी आ गई है, इसलिए पॉपुलेशन की बढ़ने की दर पहले की तुलना में कम होगी। जैसा कि हार्वे-लेविन्स्टीन कहते भी हैं, इन इनिशियल स्टेज लाइक इन द सेकेंड स्टेज population is an increasing function of income, and with the passage of time, like we can say in the third stage, it shows the decreasing function of income। यानी दूसरी अवस्था में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत तेज होती है और तीसरी अवस्था में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट दूसरी अवस्था की तुलना में कम होती है। जैसा कि आप एक एग्जांपल से भी इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आप अपनी स्कूटी की स्पीड को शुरुआत में 120 किलोमीटर की स्पीड से अपनी स्कूटी को आप ड्राइव करें, मींस वेरी हाई स्पीड, आफ्टर विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ यू ड्राइव योर स्कूटी बाय द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मींस आपकी स्कूटी तो आगे जा रही है लेकिन पहले 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, अब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, बट इट इज अप्रोचिंग फॉरवर्ड, लेकिन वो आगे तो जा रही है। उसी तरह से सेकेंड स्टेज में पॉपुलेशन बढ़ती है बहुत तेज गति से, और थर्ड स्टेज में उसके आगे बढ़ने की गति, पॉपुलेशन के ग्रो होने की स्पीड सेकेंड स्टेज की कंपैरिजन में कम हो जाती है। चलिए, आफ्टर डिस्कसिंग द 3 stages on the relationship, on the basis of the relationship between income and population growth, now we are going to discuss about the 2 forces. According to Harve-Levenshtein, economy, every underdeveloped economy is influenced by the 2 forces. Harve-Levenshtein का कहना है कि प्रत्येक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में 2 तरह की शक्तियां हमेशा काम करती रहती हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करती रहती हैं। फर्स्ट फोर्स इज रिगार्डेड एज द इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस, IDF, इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस। और इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस आय अवसादी शक्तियां, आय को घटाने वाली शक्तियां, डेवलपमेंट में बाधा पहुंचाने वाली शक्तियां, मींस इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज इनकम रेजिंग फोर्स और इनकम एनहांसिंग फोर्स और इनकम मोटिवेटिंग फोर्स, IRF। According to Harve-Levenshtein, every underdeveloped economy is influenced by the 2 forces। यानी 2 तरह की शक्तियां इकोनॉमी में काम करती रहती हैं।
एक आय को घटाने वाली शक्तियां, आय की टांग को खींचने वाली शक्तियां, डेवलपमेंट के प्रोसेस में बाधा पहुंचाने वाली शक्तियां, यानी आय अवसादी शक्तियां. वी कैन से दिस इज द शॉक्स फॉर द इकोनॉमी. मींस इनकम डिप्रेसिंग फोर्स मींस द नेगेटिव फोर्सेस, यानी नकारात्मक शक्तियां, एक आघात का काम करने वाली शक्तियां, आय को घटाने वाली शक्तियां, इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस. On the other hand, we are talking about income raising forces, means income raising force or income motivating force or income enhancing force or income increasing force, means income raising force which lubricates the wheels of the development in the economy. यानी ऐसी शक्तियां जो इकोनॉमी में विकास के पहिए को लुब्रिकेट करती हैं, उनको, उनके लिए चीजों को आसान बनाती हैं ताकि इकोनॉमी ऊपर की तरफ उड़ान भर सके. And income depressive force means which reverses the wheels of the economy, which reverses the wheels of the development in the underdeveloped economies. यानी दो तरह की शक्तियां काम करती रहती हैं, एक आय को घटाने के लिए प्रयास करती रहती है और दूसरी तरफ कुछ शक्तियां आय को बढ़ाने का प्रयास करती रहती हैं. We can compare the situation just like if you are aware about the serial of शक्तिमान. शक्तिमान आपने देखा था. शक्तिमान में दो तरह की शक्तियां थी, एक शक्तिमान पॉजिटिव एंड उसका जो अपोनेंट था जिसको आप लोग डॉक्टर जैकॉल के नाम से जानते हैं, इट शोज द नेगेटिव फोर्स इन द इकोनॉमी. ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू हार्वे लेवेंस्टीन, वो हार्वे लेवेंस्टीन इनकम डिप्रेसिंग फोर्स पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं. ही एम्फेसाइज्ड ऑन इनकम डिप्रेसिंग फोर्स एंड ही सेड population, he saw the population as a main income depressing force in the economy. यानी हार्वे लेवेंस्टीन कहते हैं जो जनसंख्या है वो इकोनॉमी में प्रमुख आय अवसादी शक्ति का काम करती है. यानी वो जनसंख्या ही है जिसकी वजह से इकोनॉमी की, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की इनकम में वृद्धि नहीं हो पाती है और वो बाधा उत्पन्न करती रहती है, which creates the hurdles before the economy's development. That's why the population, he regarded the population as a main income depressing force. अब देखिए कैसे, how can we say the population plays a income, the role of income depressing force. हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कैसे इनकम डिप्रेसिंग फोर्स की भूमिका निभाती है पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू हार्वे लेवेंस्टीन. We are drawing a figure in vertical axis. We are depicting a per capita income. यानी हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे प्रति व्यक्ति आय को शो कर रहे हैं. We are depicting per capita income on the vertical axis, and on the horizontal axis we are depicting the population, जनसंख्या. आधार अक्ष पे जनसंख्या को व्यक्त किया जा रहा है जबकि लंबवत अक्ष पे प्रति व्यक्ति आय को दिखाया जा रहा है. We are trying to understand how can we say the population plays a most important income depressing force in the economy, in the underdeveloped economy. यानी कैसे जनसंख्या इकोनॉमी के लिए बाधा उत्पन्न करती है, हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. Imagine the total availability of the resources in the economy in the given time period is R1. अगर किसी अर्थव्यवस्था में, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जो संसाधनों की उपलब्धता है वो R1 के बराबर है, एंड द R1 रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन हु रेसाइड्स इन द इकोनॉमी, द लेवल ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन द इकोनॉमी इज P1. अगर P1 जनसंख्या है और कुल संसाधन जो अर्थव्यवस्था के पास है वो R1 के बराबर है. अब अगर इफ वी डिस्ट्रीब्यूट द टोटल R1 रिसोर्सेज अमंग द P1 पॉपुलेशन, अब हम R1 रिसोर्सेज को P1 जनसंख्या के स्तर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उनका बंटवारा कर दें, देन द पर कैपिटा इनकम विल बी Y1. यानी R1 रिसोर्सेज के साथ P1 जनसंख्या कार्यरत होने पर एक व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है वो Y1 के बराबर है. नाउ the effort made by the underdeveloped economies to enhance the income level, to enhance the resources in the economy. Now
द रिसोर्सेज हैज इंक्रीज्ड टू द R2 लेवल, यानी अब इकोनॉमी में इनकम रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी में R2 रिसोर्सेज बढ़कर हो गए with P1 population. If we distribute the R2 resources among the P1 population, now what will be the per capita income in the new situation? Let's see. यानी अब P1 population के बीच में ही आपको R2 resources का बंटवारा करना है, तो नया प्रति व्यक्ति आय का स्तर क्या होगा देखते हैं. Now the per capita income will be increased from Y1 to Y2. यानी अब आपका R2 रिसोर्सेज का बंटवारा जब P1 पॉपुलेशन के बीच में किया जा रहा है, everyone has the Y2 per capita income, यानी अब प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है वो Y2 के बराबर हो गई है. लेकिन आपको मालूम है इनकम लेवल बढ़ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द एफर्ट मेड बाय द इकोनॉमी. इकोनॉमी की कोशिशों से, प्रयासों से अब इनकम का लेवल, प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़ गया है. याद करिए, हार्वे लेवेंस्टीन सेड पॉपुलेशन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम. जनसंख्या आय का फलन होती है. जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड इन इनकम नाउ द पॉपुलेशन विल ऑल्सो इंक्रीज. अब चूंकि आय का स्तर जब बढ़ गया है तो आय बढ़ने से अब जनसंख्या भी बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि हार्वे लेवेंस्टीन कहते हैं जनसंख्या आय का फलन होती है. आय के बढ़ने से जनसंख्या भी बढ़ती है. नाउ द न्यू पर कैपिटा इनकम लेवल इज Y2. इट इज इंक्रीज्ड पर कैपिटा इनकम लेवल. इसके कारण अब पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि इनकम, पॉपुलेशन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम. पॉपुलेशन विल इंक्रीज फ्रॉम P1 टू P2. अब जनसंख्या बढ़ के हो गई P1 से P2. अब देखिए प्रति व्यक्ति आय का स्तर घट के हो गया Y2 से Y3. अगेन द पॉपुलेशन विल इंक्रीज P2 टू P3. अगेन द पर कैपिटा इनकम विल डिक्रीज फ्रॉम Y3 टू Y4 एंड इट विल रीच अगेन द ओल्ड सिचुएशन, द अर्लियर सिचुएशन, जो कि आपका Y1 था. यानी पॉपुलेशन आपकी बढ़ते 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 P4 लेवल तक पहुंच गई और आपने पुराना इकोनॉमी का Y1 लेवल इनकम का अचीव कर लिया. मींस पॉपुलेशन प्लेज अ मेन इनकम डिप्रेसिंग फोर्स इन द इकोनॉमी. यानी जो आय अवसादी शक्ति है वो पॉपुलेशन का बढ़ना है, जिसकी वजह से इकोनॉमी का जो आय का स्तर है वो घटते घटते अपने पुराने स्तर पर पहुंच गया. दैट्स व्हाई हार्वे लेवेंस्टीन सेड पॉपुलेशन इज अ मेन इनकम डिप्रेसिंग फोर्स इन द इकोनॉमी. यानी प्रमुख आय अवसादी शक्ति का काम करती है जनसंख्या. चलिए हम लोग ये कोशिश करेंगे अब समझने की. नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ बोथ द फोर्सेस. यानी अब दो पहलवानों में कौन सा पहलवान ज्यादा शक्तिशाली है. हु इज द मोस्ट पावरफुल इन द बैटल ऑफ द इकोनॉमी, यानी इन द बैटल ऑफ द डेवलपमेंट. तो इस बात को समझने के लिए, यानी वेदर द इनकम डिप्रेसिंग फोर्स इज मोर पावरफुल और द इनकम रेजिंग फोर्स इज द मोर पावरफुल, हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं. यानी अब दोनों पहलवानों में से जो पहलवान ज्यादा शक्तिशाली होगा वो जीत लेगा, वो जीत उसको मिलेगी. तो हम लोग इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस आर मोर पावरफुल और इनकम रेजिंग फोर्स आर मोर पावरफुल. लेट्स सी. इन वर्टिकल एक्सिस वी आर डिपिक्टिंग अगेन द पर कैपिटा इनकम. हम लोग प्रति व्यक्ति आय और इंड्यूस्ड इनकम IID मींस पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम डिक्रीज को शो कर रहे हैं. वी आर डिपिक्टिंग द पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम डिक्रीज ऑन वर्टिकल एक्सिस. यानी प्रति व्यक्ति आय और प्रेरित आय में कमी को प्रदर्शित किया जा रहा है लंबवत अक्ष पर. एंड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी आर डिपिक्टिंग द per capita income and
इंड्यूस्ड इनकम इंक्रीज, III, यानी प्रति व्यक्ति आय और प्रेरित आय में वृद्धि को प्रदर्शित किया जा रहा है। दिस इज द 45 डिग्री लाइन, ये 45 डिग्री की एक रेखा है। अब हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं दोनों फोर्सेस में कौन सा फोर्स ज्यादा पावरफुल है और कहां तक दोनों फोर्सेस में कौन कब तक शक्तिशाली बना रहेगा। चलिए देखते हैं। दिस इज द इनकम रेजिंग कर्व, ये आय उत्प्रेरक कर्व है, आय प्रोत्साहक वक्र है। एंड दिस इज द इनकम डिप्रेसिंग कर्व, यानी ये आय हतोत्साहक वक्र है, आय को घटाने वाली शक्तियों को प्रदर्शित करने वाला वक्र है। मींस ZT इज अ इनकम रेजिंग कर्व एंड SV इज द इनकम डिप्रेसिंग कर्व, यानी ये दोनों, ये आपका आय ZT इज अ आय उत्प्रेरक वक्र एंड SV इज अ इनकम डिप्रेसिंग कर्व, यानी आय अवसादी वक्र है SV आपका, और आपका जो ZT है ये आय उत्प्रेरक वक्र को प्रदर्शित करता है। इफ वी वांट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ इनकम रेजिंग कर्व, अगर हम आय उत्प्रेरक वक्र की शक्ति को का मापन करना चाहते हैं, देन वी विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द 45 डिग्री लाइन, यानी जब हम आय उत्प्रेरक वक्र की शक्ति को जानना चाहते हैं, यानी कितना शक्तिशाली है आय उत्प्रेरक शक्तियां कितनी शक्तिशाली हैं, उस बात को समझने के लिए हमें 45 डिग्री लाइन से आय उत्प्रेरक वक्र तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मींस दिस डिस्टेंस लाइक AB विल शो द इंटेंसिटी ऑफ इनकम रेजिंग कर्व। इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कंसीडर द इंटेंसिटी ऑफ इनकम डिप्रेसिंग कर्व, अगर हम अब आय अवसादी शक्तियों की शक्ति को जानना चाहते हैं, वो कितना पावरफुल है, इस बात को समझना चाहते हैं, देन वी विल हैव टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम द 45 डिग्री लाइन। मींस वी कैन से दिस इज CD. CD shows the power, CD shows the intensity of income depressing forces and AB shows the power और इंटेंसिटी ऑफ इनकम रेजिंग फोर्सेस। चलिए कोशिश करते हैं, ये याद रखिए इस बात को। इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कंसीडर और मेजर टू इंटेंसिटी ऑफ इनकम रेजिंग फोर्स और इनकम रेजिंग आय बढ़ाने वाली शक्तियों की तीव्रता देखनी है, तो वी विल हैव टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम 45 डिग्री लाइन अप टू द इनकम रेजिंग कर्व। एंड इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कंसीडर और मेजर the intensity of income depressing force, then we will have to draw a vertical line from 45 degree line up to the income depressing curve, that is CD, and intensity of income raising curve, income raising force, that is AB। यानी अगर आपको आय अवसादी शक्तियों की शक्ति के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो आय अवसादी शक्ति की शक्ति को जानने के लिए आपको इस 45 डिग्री की लाइन से आय अवसादी वक्र तक एक लंबवत रेखा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना होगा और आप आय अवसादी शक्तियों की शक्ति को जान सकते हैं। और अगर आपको आय उत्प्रेरक शक्तियों की शक्ति के बारे में जानना है, तो आपको 45 डिग्री लाइन से इस आय उत्प्रेरक वक्र तक एक क्षैतिज रेखा खींच के इस शक्ति के बारे में जानकारी हासिल प्राप्त की जा सकती है। चलिए मान लीजिए दिस इज पॉइंट Q, मींस दिस इज लोअर कट ऑफ पॉइंट। लोअर कट ऑफ पॉइंट मींस एट पॉइंट Q बोथ कर्व आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी Q बिंदु पर दोनों ही वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट द इनकम लेवल एट पॉइंट Q? पॉइंट Q पर इकोनॉमी की इनकम का लेवल क्या है? दैट इज Y1, यानी पॉइंट Q पर बोथ फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम,
बट द इनकम लेवल ऑफ द इकोनॉमी इज वेरी लो, दैट इज Y1। यानी Q बिंदु पर, जहां पे ये इसको हम लोग लोअर कट ऑफ पॉइंट कह रहे हैं, निम्न प्रतिच्छेदन का बिंदु कह रहे हैं, इस बिंदु पर दोनों शक्तियां संतुलन में हैं, बोथ फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट Q, बट द इनकम लेवल ऑफ द इकोनॉमी इज वेरी लो, दैट इज Y1। यानी अब सरकारें या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज ने कोशिश की कि इनकम लेवल को बढ़ाया जाए। नाउ just because of the effort made by the underdeveloped economy, the income level will be increased. Imagine up to Y2 तक इन्वेस्टमेंट किया गया, इन्वेस्टमेंट हुआ और इनकम लेवल विल गो अप टू Y2, प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़कर Y2 हो गया। चलिए देखते हैं what will be the intensity of income depressing force and income raising force at the Y2 per capita income level। यानी Y2 लेवल पे अब देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों शक्तियों में से कौन सी शक्ति ज्यादा पावरफुल है Y2 लेवल पे। आपको मालूम है, we will draw a horizontal line from the 45-degree line to measure the intensity of income raising फोर्स एट Y2 लेवल। अब आप देखिए, आपने Y2 लेवल पे आपने 45 डिग्री लाइन से आय उत्प्रेरक वक्र तक एक क्षैतिज रेखा खींची और आपको मालूम चल गया कि Y2 इनकम लेवल पे जो आय उत्प्रेरक शक्तियों की जो शक्ति है वो किसके बराबर है? LP के बराबर है। व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इनकम डिप्रेसिंग फोर्स एट Y2 लेवल? यानी Y2 लेवल पे इनकम डिप्रेसिंग फोर्स की शक्ति कितनी है, देख लेते हैं। वी विल ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम 45 डिग्री लाइन अप टू द इनकम डिप्रेसिंग कर्व। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द 45 डिग्री लाइन एंड इनकम डिप्रेसिंग फोर्स वी कैन शो इट बाय द OF, means the distance between the 45 degree line and income depressing curve is OF। OF दूरी आपकी ये बता रही है कि आपकी जो आय अवसादी शक्तियां हैं उनकी जो शक्ति है, उनका जो पावर है वो OF के बराबर है, जबकि जो इनकम रेजिंग कर्व की इनकम रेजिंग फोर्स की पावर Y2 लेवल पे है वो LP के बराबर है। नाउ वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड एट द लेवल ऑफ Y2 इनकम डिप्रेसिंग फोर्स इज मोर पावरफुल देन द इनकम रेजिंग फोर्स। यानी Y2 लेवल पे भी आपका जो आय को बढ़ाने वाली शक्तियां हैं उनकी जो शक्ति है, उनका जो पावर है वो LP के बराबर है। जो आय को घटाने वाली शक्तियों की तुलना में जो OF के बराबर है, बहुत ज्यादा ये शक्ति है आय को घटाने वाली, और आय को बढ़ाने वाली शक्तियां की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम है। इसकी वजह से क्या होगा, जब आय को घटाने वाली शक्तियां the forces which are responsible to decrease the income level, it is more powerful than the income raising force। यानी आय को घटाने वाली शक्ति शक्तिशाली है तो मींस आय घटेगी, आय घटती जाएगी। पहले आपकी आय Y2 थी, अब Y2 से घट के आपकी आय फिर से यहां पे आएगी Y1 Y3, आपकी और भी घटते घटते इनकम पुराने लेवल पर आ जाएगी। मींस दिस इज लोअर कट ऑफ पॉइंट। व्हाट अबाउट द अपर कट ऑफ पॉइंट? अपर कट ऑफ पॉइंट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट G पॉइंट। G पॉइंट अगेन shows the intersection point of both the curve, यानी at the point of G the income depressing curve and income raising curve both are intersect to each other। दोनों ही शक्तियां फिर से संतुलन में हैं। and what will be the income level? Let's see, at the point G the income level is Y star। अब देखिए, एक बात समझने की है कि अपर कट ऑफ पॉइंट जहां पे दोनों शक्तियां संतुलन में हैं और आय का स्तर, प्रति व्यक्ति आय का स्तर Y स्टार है, इसके बाद क्या होगा और इसके पहले क्या होगा? you can easily understand about the situation before G। आपने देखा before G, आप कहीं भी देख लीजिए, always income depressing force will be more powerful than the income
इनकम डिप्रेसिंग फोर्स इज मोर पावरफुल देन द इनकम रेजिंग फोर्स। यानी जी पॉइंट के पहले आप कहीं भी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बात समझ में आती है कि इनकम डिप्रेसिंग फोर्स हमेशा ज्यादा शक्तिशाली है इनकम को बढ़ाने वाले फोर्सेस की तुलना में। अगर इकोनॉमी में इतना इन्वेस्टमेंट किया जाए कि इनकम का लेवल बढ़ते बढ़ते वाई स्टार तक पहुंच जाए, मींस द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द अपर कट ऑफ पॉइंट, upper cutoff point means the upper cutoff point, upper intersection point of the both the forces, इस लेवल के बाद इकोनॉमी में आपका इनकम रेजिंग फोर्स इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। मींस द जी पॉइंट शोज द क्रिटिकल मिनिमम रिक्वायरमेंट और क्रिटिकल मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आफ्टर दैट द income raising force will become more powerful than the income depressing force। यानी ये जो आपका G पॉइंट है, ये Y स्टार है, ये इस बात को शो करता है कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में अगर निम्न आय के जाल से बाहर निकलना है तो उन अर्थव्यवस्थाओं को कम से कम इतना निवेश करना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय का स्तर Y स्टार जो कि आपका G पॉइंट है, इस पॉइंट तक पहुंच जाए, क्योंकि इस पॉइंट के बाद इनकम रेजिंग फोर्स की जो पावर है वो इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और हम लोग अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले निर्धनता का दुष्चक्र हो या फिर लोअर अनएम्प्लॉयमेंट का दलदल हो, उससे इकोनॉमी बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाती है। मींस वाई स्टार शोज द critical minimum required level of investment to take it out their economies from the morass of poverty, from the morass of underdevelopment, from the morass of unemployment and from the morass of low level income trap। यानी सरकारों को इतना निवेश करना चाहिए कम से कम एटलीस्ट मिनिमम लेवल जो होगा वो वाई स्टार तक अर्थव्यवस्थाओं को पहुंचाने का होना चाहिए, क्योंकि इस लेवल के बाद अब आय को घटाने वाली शक्तियां हारने लगती हैं और आय को बढ़ाने वाली शक्तियां जीतने लगती हैं। और जब एक बार ये प्रोसेस आगे बढ़ने लगता है तो इकोनॉमी विल फ्लाई एंड कंटिन्यूअस विल बी फ्लाइड इन द इकोनॉमी। ये तो हम लोगों ने ये बात की कि कैसे क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थियरी हार्वे लेवेंस्टीन ने समझाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।